webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anaga representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about e-invoicing, top rejections and resolutions in Tally Prime. So before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments: sales, services, solutions, implementations, and development. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bitrix 24 CRM, Skill India. So now moving ahead to the today's topic. So now the speakers are here. So first the presentation will be done by myself and the live demonstration will be done by Miss Sonali. So Sonali, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the resource person, Mr. Bhagwati Dhandaria. Sir, are you here? Yeah, Anga, I'm all over here. Thank you. Okay. Hearty welcome all of you. So now I request and move ahead with our presentation. Sir, can you please share the screen? Okay. So this is our Rajlakshmi family. So welcome all of you. Next slide. So the today's topic is e-invoicing, top rejections and resolutions in Tally Prime. So what is the particular rejections? So first is possible e-invoicing error list. Means what are the error list which is showing issues while uploading the e-invoicing. The first is the field location must be a string with a minimum length of 3 and 5 maximum length of 50. मीन्स यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग यूज होगे वो मिनिमम लेंथ अपने 3 एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ 50 होनी चाहिए. फिर जो भी अपने HSN, द HSN डज नॉट बिलोंग टू द सर्विसेज. अगर आपका HSN करेक्ट नहीं है वो स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए, तो वो अपने को यहाँ पे अपलोड के टाइम पे एरर व्यू करेगा. सेम एज फॉर SAC, दैट इज सैक कोड विच इज बिलोंगिंग टू द गुड्स. Next year, the field rounding of amount must be between minus 99.99 and 99.99. The address one field is required. तो ये सारी चीजें जो है आपकी error show करती है अगर ये properly round off value नहीं होगा तो. Next is पिन कोड ऑफ बायर डज नॉट बिलोंग टू हिज और हर स्टेट. मीन्स जो भी बायर का पिन कोड रहेगा वो भी प्रॉपरली एज पर हिज स्टेट मेंशन होना जरूरी है. buyer billing bill to mailing name is not specified or invalid. अगर buyer के bill to details अगर mismatch रहेंगे, invalid रहेंगे तो भी हमें वो error show करेगा while uploading. Same as buyer bill to address is not specified. तो ये specific error list है जो हमें properly before uploading maintain करनी है. Next slide. Duplicate IRN और IRN is already generated and registered with GST and lookup portal. यहाँ पे IRN details already generated हो गए या कोई registered रहेगा, duplicate होगा तो वो हमें GST portal पे show करेगा. The field document number must mismatch the regular expressions. The field accessible amount, total amount minus discount must मैच द रेगुलर एक्सपेंस. मींस बिफोर अपलोडिंग हमें ये भी देखना है कि जो भी वैल्यूज, जो भी अमाउंट है वो प्रॉपरली वहां पे मैच हो रही है या नहीं. द डॉक्यूमेंट डेट शुड नॉट बी फ्यूचर डेट. मींस अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ई इनवॉइसिंग हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो वो फ्यूचर डेट के नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट इज GSTN UIN इज नॉट स्पेसिफाइड और इनवैलिड. मींस ये डिटेल्स हमें मैंडेटरी फील्ड होने जरूरी है. ये चीजें नहीं रहेगी तो अपलोड नहीं होगा. Recipient should be CES for the transaction CES verb. So ये सारे error list है, तो ये सी चीजें हमें verify करनी है before uploading. Next slide. Invoicing features. You can either generate an invoice during the voucher entry for a particular transaction or in a bulk for multiple invoices together. So Tally Prime provide both the option as per our requirements or preferences. Means जो भी invoicing process है वो हम voucher entry के time पे process कर सकते हैं while generating your single bill or your multiple invoices. तो ये flexibility Tally Prime ने already provide की हुई है as per the requirements.
It is quite possible that the system you normally use to generate e-invoice may get disconnected from the internet. In such a case, Tally Prime will help you to handle the situation by exporting e-invoice related data in the form of JSON format. Next is, in case the IRP rejects your invoices, Tally Prime will intimate you with the reasons that you can make necessary corrections and try again. तो यहाँ पे हमें specific necessary reasons भी mention करने पड़ेंगे corrections, ताकि हम ये further process revise कर सकें. Next is, Tally Prime exclusive report will give you complete view of the status of your transactions with the respect of invoicing. So first we have to know the status of invoicing, whether it is generated, pending or cancelled. Next is option to generate or cancel the IRN for the applicable invoices. You can also manually override the status of invoices generated, cancelled, updated or IRN. There is also the option to delete the stored IRN information including QR code and start afresh if needed. तो ये specific features है जो हमें maintain करना है before invoicing process. And the next slide. Tally Prime timely alerts will be available in multi-user scenarios to prevent the redundancy and ensures that the latest data is shared with the e-invoicing portal. So also it helps you to safeguard against the accidental modifications, deletion, cancellation of IRN generated for a particular transactions. यहाँ पे Tally Prime हमें timely alert देती है, मीन्स अगर जो भी सिनेरियोज हमने मेंटेन किए हुए या पोर्टल पे अपलोड करना है तो ये हमें पॉपअप देती है बिफोर इट इज मॉडिफाइड, डिलीटेड और कैंसिलेशन. सो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. Thank you, Ananga ma'am. Nice presentation. Hello everyone. Myself Sonali. I am here to present a live demo of e-invoicing top rejections and resolutions in Tally Prime. So मैं स्क्रीन शेयर कर देती. My screen is visible, ma'am? Yeah, it's visible. Hello. Yeah, it's Okay. visible, Sonali. Okay, ma'am. Thank you. So आज हम देखेंगे e-invoicing जनरेट करते वक्त हमें जो एरर्स आते हैं वो एरर्स को हम रिसोल्यूशंस कैसे दे सकते हैं. तो इसके पहले हमारे जो भी ये हुए सेशन हुए उसमें हमने e-invoicing इम्प्लीमेंट देखा है. e-invoicing का इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है टैली में. तो आज हम देखेंगे e-invoicing जनरेट करते वक्त हमें किस तरीके से एरर यहाँ पे शो करते हैं. तो फर्स्ट देखिए, अगर हमें ऐसा कुछ एरर आता है रीजन फॉर रिजेक्शन डुप्लीकेट IRN का, तो वो टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, वो e-invoicing का टैली में e-invoicing लेवल पे कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं वो आज हम देखेंगे. तो देखिए, अगर e-invoicing रिपोर्ट में हमें जाना है तो यहाँ पे हम शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं, Alt-G. यहाँ पे हम जाएंगे e-invoicing में. ये है e-invoicing हमारा रिपोर्ट. यहाँ पे मैं पीरियड एक बार सिलेक्ट कर देती. e-invoicing रिलेटेड जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है, जैसे कि हमारा IRN जनरेट हो चुके हैं वो कितने हमारे e-invoicing है, पेंडिंग में कितने हैं, अगर मिसिंग में है, कुछ इनवैलिड है तो वो हमें यहाँ पे शो करते हैं. अनसर्टन ट्रांजेक्शन कुछ एरर लेवल पे है तो यहाँ पे हमें वो शो करते हैं. तो हमने अभी जो देखा था डुप्लीकेट IRN किस तरीके से हमें यहाँ पे रिसॉल्व करना है. तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने जनरेट हो चुका है, यहाँ पे है हमारा एक सेल्स की एंट्री. यहाँ पे अगर डुप्लीकेट IRN या e-invoicing का आपको कुछ एरर शो करता है, यहाँ पे हमारा सेल्स का इनवाइसिंग नंबरिंग मेथड जो है वो अगर मैन्युअल है तो यहाँ पे जाके आप सेट कर सकते हैं अपना नेक्स्ट वाला इनवाइस नंबर. अगर यहाँ पे आपका इनवाइसिंग नंबरिंग अगर ऑटोमेटिक है तो आपको ये इनवाइस कैंसिल करना पड़ेगा. वो कैंसिल करने के बाद आपको ये जो इनवाइस नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है उसके अगेंस्ट जो IRN हमारा जनरेट हो चुका है तो वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा. यहाँ की जैसे कि अपना इनवाइसिंग मेथड अगर ऑटोमेटिक है तो इस केस में अपने को ये इनवाइस कैंसिल करना पड़ेगा और अगेंस्ट हमें नेक्स्ट इनवाइस के अगेंस्ट अपने को इनवाइसिंग जनरेट
करना पड़ेगा। अगर इनवाइस नंबरिंग मैनुअल है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अगर ऑटोमेटिक है तो अपने को ये इनवाइस कैंसिल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर कैंसिल का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, देखिए F10 में हमें यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन दिया है, F10 में है हमारा कैंसिल का ऑप्शन, Alt F10 में है मार्क एज कैंसिल। अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे कैंसिल का, तो कैंसिल में देखिए हमें यहाँ पे रीजन भी दिए किस वजह से हमें ये इनवाइस कैंसिल करना है। डुप्लीकेट अगर है तो डुप्लीकेट डाल सकते हैं, डेटा एंट्री मिस्टेक है, या कुछ ऑर्डर कैंसिल है, या इसमें कुछ अदर रीजन है, तो वो रीजंस डाल के हम ये इनवाइस कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी डाल देती, जैसे कि डुप्लीकेट IRN था मेरा, यहाँ पे मैं डाल रही रीजन डुप्लीकेट। तो अभी देखिए, तो मेरा जो ये इनवाइस जनरेट हो चुका है, ये मेरा इनवाइस जनरेट हो चुका था, अभी जो कैंसिल किया है वो हमें यहाँ पे शो करेगा फॉर IRN कैंसिल में। तो इस तरीके से अगर डुप्लीकेट IRN का अगर कुछ एरर्स आपको आता है, तो एक तो अगर मैन्युअली अपना इनवाइसिंग नंबरिंग है तो आप मैन्युअली वहां पे सेट कर सकते हैं इनवाइसिंग नंबरिंग का। देखेंगे तो ये देखिए, हम जाएंगे मास्टर में, मास्टर में जाने के बाद अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे वाउचर्स टाइप्स में, वाउचर टाइप्स में हमारा रहेगा यहाँ पे ये इनवाइसिंग नंबर। ये अगर मैन्युअली है तो वहां पे आप सेट कर सकते हैं नेक्स्ट वाला इनवाइसिंग नंबरिंग। अगर यहाँ पे ये ऑटोमेटिक है तो आपको वो IRN कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये एरर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सेकंड देखिए, सेकंड हमारा अगर ऐसा कुछ एरर आता है, द फील्ड डॉक्यूमेंट्स नंबर मस्ट मैच द रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब ये जीरो या कुछ अपन स्लैश यूज करते हैं इनवाइसिंग नंबरिंग में, जीरो से हमारा अगर इनवाइसिंग नंबर स्टार्ट होता है तो उसका एरर हम किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी जाती हूँ डिस्प्ले में, रिपोर्ट्स में, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है ई इनवाइसिंग का, ये रिपोर्ट्स में आप चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पीरियड डाल के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा ये इनवाइस नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है जीरो से। अगर यहाँ पे मेरा इनवाइसिंग नंबरिंग जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जब मैं इनवाइसिंग जनरेट करूंगी तो मुझे वहां पे ये इनवाइस रिजेक्शन में बताएगा। इसे हम कैसे, इसका रिजेक्शन जो आया है इसको सॉल्यूशन किस तरीके से दे सकते हैं वो मैं आपको एक बार बताती। अभी देखिए हम जाएंगे यहाँ पे वाउचर लेवल में, यहाँ पे मास्टर में अल्टर में, यहाँ पे हम जाएंगे वाउचर्स टाइप्स, वाउचर टाइप्स में हमारा ये लेजर रहेगा सेल्स GST का। अभी यहाँ पे हमारा मेथड जो है वाउचर नंबरिंग का वो ऑटोमेटिक है, यहाँ पे मैं उसको यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में यस कर देती। यहाँ पे मेरा प्रीफिल विद जीरो जो है, जो कि मेरे इनवाइसिंग नंबरिंग में स्टार्टिंग में जीरो था, उसका जो विद जीरो प्रेफिल है यहाँ पे मैं नो कर देती। देन अगेंस्ट, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर में प्रेफिक्स डिटेल्स जो डाला है वो भी मैं यहाँ से हटा देती, इसको कंट्रोल A से मैं सेव कर देती, यहाँ से बाहर आ जाती। शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt G ई इनवाइसिंग, यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट कर देती। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो इनवाइसिंग नंबरिंग में जीरो था यहाँ से मेरा हट गया। इस तरीके से अगर आपकी इनवाइसिंग नंबरिंग में जीरो आप यूज कर रहे हैं तो आपको वो इनवाइसिंग रिपोर्ट, इनवाइसिंग बिल जनरेट करते वक्त आपको वो रिजेक्शन में चला जाएगा। अगर वो रिजेक्शन में चला जाता है, अगर वो ऑटोमेटिक है, प्रेफिक्स अपना जीरो है, तो वो निकाल के आप आगे अगेंस्ट उसका ई इनवाइसिंग, जीरो निकाल के अगेंस्ट उसका ई इनवाइसिंग जनरेट कर सकते हैं। अभी सेकंड, थर्ड वाला हम देखेंगे। थर्ड जो है यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा रीजन ऑफ रिजेक्शन है, अगर कोई डिस्काउंट अमाउंट जो है अपना अगर पॉइंट में जा रहा है या माइनस में, निगेटिव बैलेंस में अगर अपने को बता रहे, तो वो एरर हम टैली में कैसे इस तरीके से हमें शो करता है। बिल जब भी हम बनाएंगे तो इस तरीके से आपको शो करेगा, तो इसका सोल्यूशन हम टैली में किस तरीके से देंगे ये हम देखेंगे। यहाँ पे इसके डिस्प्ले GST रिपोर्ट्स इनवाइसिंग, यहाँ पे पीरियड डाल देती। अभी यहाँ पे देखिए मुझे ये जो यहाँ पे एरर शो करेगा जब भी मैं इसके अगेंस्ट इनवाइस बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरा डिस्काउंट का जो लेजर है, डिस्काउंट के लेजर में मेरा कुछ मिसमैच है। तो आप
यहाँ पे जाएंगे लेजर में। लेजर में जाके यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए अपना जीएसटी एप्लीकेबल है, ये यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट्स में इंटीग्रेटेड टैक्स जो अमाउंट है वो मिसमैच लेवल पे बताएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्काउंट लेजर लेंगे हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर ग्रुप में, यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इस जीएसटी जो एप्लीकेबल है यहाँ पे हम उसको कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। देन यहाँ पे इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर ए, यहाँ पे हम लेंगे जीएसटी एंड यहाँ पे हम लेंगे मेथड ऑफ एप्रोप्रिएट टू बोथ रहेगा, और मेथड ऑफ वैल्यू जो है कैलकुलेशन जो है हमारी वैल्यू पे रहेंगी। देन इसको मैं सेव कर देती, यहाँ से फिर मेरा ये एरर हट गया, तो इसके अगेंस्ट में मेरा ई इनवाइसिंग जनरेट कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मेरा यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया तो मेरा ये ई इनवाइसिंग यहाँ पे सेट हो जाएगा। सेकेंड, अगर फ्यूचर डेट में आप कोई भी इनवाइस जनरेट कर रहे तो वो इनवाइस आपका रिजेक्शन में चला जाता है, क्योंकि टैली में आप एक तो करंट ईयर करंट डेट या बैक डेटेड है वही इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर डेट का इनवाइस जनरेट करते हैं तो आपको यहाँ पे एरर शो करता है। यहाँ पे अभी फिलहाल मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, नहीं तो मेरा यही जो इनवाइस था वो एरर में चला जाता था, रिजेक्ट बताता था मुझे। तो इनवाइस आप जब भी जनरेट करेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे डेट एक बार प्रॉपर चेक कर लेना, करंट डेट है, बैक डेटेड है, या आप कौन सी फ्यूचर डेट डाल रहे। तो इस तरीके से हम ये फ्यूचर डेट का जो भी एरर आएगा रिजेक्शन में तो वो हम निकाल सकते हैं। देन हमारा सेकेंड, अगर कोई भी पार्टी का जीएसटी नंबर अगर रॉन्ग होता है या अपना कंपनी का जीएसटी नंबर रॉन्ग होता है तो हमें यहाँ पे ई इनवाइसिंग के पोर्टल पे शो करता है इनवैलिड, मिसिंग इनवैलिड इंफॉर्मेशन में। ये देखिए यहाँ पे हमें मिसिंग एंड इनवैलिड इंफॉर्मेशन में ये एरर यहाँ पे शो करेगा, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई इनवाइसिंग नॉट प्रोवाइड। तो यहाँ पे देखिए हमारा जीएसटी नंबर है, यहाँ पे आपको एरर शो कर रहा है कि जीएसटीएन एंड यूआईएन इज नॉट स्पेसिफाइड इनवैलिड। तो इस वजह से मेरा जीएसटी नंबर रॉन्ग था, इस वजह से मेरा ई इनवाइसिंग आगे जनरेट नहीं हुआ है। तो इसका अगर सोल्यूशन देना है तो हम क्या करेंगे, इसका जीएसटी नंबर एक बार यहाँ पे पार्टी लेवल पे प्रॉपर डाल देंगे। यहाँ पे मैं इसका इनवाइस नंबर जो है वो डाल दी थी। देन इसको मैं अगेन ये कर दूंगी, यहाँ पे मेरा यहाँ पे मैंने जो चेंजेस करे थे वो चेंजेस यहाँ पे सेट हुए हैं, मेरा जीएसटी नंबर प्रॉपर आ गया। देन उसके बाद मैं ये इनवाइसिंग के लिए अभी आगे जनरेट कर देती। यहाँ पे मैं डाल देती मेरा ये जीएसटी नंबर। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी पार्टी का जीएसटी नंबर अगर रॉन्ग होता है तो वो आपको मिसिंग में या इनवैलिड में बताएगा। या अपने कंपनी का जीएसटी नंबर रॉन्ग है तो आप यहाँ पे कंपनी में जाके फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पे शो करेंगे आपको एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे आप यस कर देंगे। अगर अपना इनवाइस जीएसटी नंबर रॉन्ग है तो यहाँ पे जाके आप करेक्शन वाला इनवाइस नंबर डाल के जो भी इश्यूज आएगा इनवाइसिंग जीएसटी रिलेटेड जो भी एरर होगा वो यहाँ पे आपका शॉर्ट आउट होगा। एक तो पार्टी लेवल पे जीएसटी नंबर रॉन्ग होगा या कंपनी लेवल पे अगर रॉन्ग होगा तो आपको जीएसटी का एरर यहाँ पे शो करता है। तो सेकंड हमारा एक है जो हम देखेंगे, फील्ड लोकेशन बिटवीन 3 to 50 कैरेक्टर्स। मतलब इसमें क्या है, फील्ड का मतलब जो भी अपने इनवाइस अपन जो बना रहे ई इनवाइसिंग का, वहां पे हमारा फील्ड जो है बिल्ड टू सप्लाई का अगर फील्ड है वहां पे अगर एक ही अल्फाबेट आपने यूज किया है या उसका अल्फाबेट 15 कैरेक्टर से अबव है तो यहाँ पे हमें वो एरर में शो करता है। वो देखिए यहाँ पे हमें एरर में शो करेगा अभी, बायर बिल टू सप्लाई इज नॉट स्पेसिफाइड इज इनवैलिड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ये एंट्री शो हो रही है
ये एंट्री में आपको यहाँ पे जो बिल टू प्लेस दिया है यहाँ पे रॉन्ग है, टू अल्फाबेट है। यहाँ पे अगर 3 अल्फाबेट होते थे तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो जाता था। इसको हम सॉल्यूशन इस तरह से देंगे। यहाँ पे कंट्रोल एंटर्स में एंट्री ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे बिल टू सप्लाई प्रोवाइड ई इनवॉइसिंग डिटेल्स को यस करती हूँ, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ नगर। देन अगेन में इसके अगेंस्ट बनाऊंगी ई इनवॉइसिंग। तो ये एरर मेरा निकल गया और इसके अगेंस्ट मेरा ई इनवॉइसिंग जनरेट के लिए रेडी है। तो इस तरीके से फील्ड लोकेशन का अगर कुछ एरर आता है तो आप रिसॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, अगर कोई भी पार्टी का आप स्टॉक आइटम ले रहे, वो स्टॉक आइटम में HSN कोड अगर रॉन्ग है या इनकम्प्लीट है तो आपको ई इनवॉइसिंग के रिपोर्ट पे यहाँ पे शो करेगा मिसिंग एंड इनवैलिड इंफॉर्मेशन में इनकम्प्लीट HSN एंड सेट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए हमारी ये एंट्री थी, ये एंट्री में हमारा HSN कोड ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं अपना HSN कोड, या एंट्री लेवल में जाके आप एंट्री ओपन करके भी यहाँ पे HSN कोड सेट करके ये एरर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं जाऊंगी सेट अल्टर GST डिटेल्स में यस, यहाँ पे मैं करेक्शन वाला मेरा जो है वो डाल देती। यहाँ पे मेरा ये हो गया स्टॉक आइटम का HSN कोड, यहाँ पे मैं कंट्रोल ले करके इसको सेव कर देती इमेज गुड से। इसको मैं सेव कर रही। अगेन मैं प्रोवाइड इनवॉइसिंग डिटेल्स को यस करके मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो ये मुझे ई इनवॉइसिंग के लिए पूछता है। तो इस तरीके से अगर HSN कोड का कुछ एरर आता है तो आप HSN कोड का एरर स्टॉक आइटम में जाके निकाल सकते हैं। तो आगे हमारा है इनवॉइसिंग राउंडिंग। अगर इनवॉइसिंग राउंडिंग का अगर कुछ मिसमैच है तो आपका जाता है अनसर्टन ट्रांजेक्शन में, वो करेक्शन करने पड़ेगा हमें इनवॉइसिंग लेवल पे। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये पार्टी यहाँ पे मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट है। यहाँ पे हम चेक करेंगे इनवॉइसिंग जो है मेरा इनवॉइसिंग मोड जो है यहाँ पे कुछ तो भी रॉन्ग है लेजर में। यहाँ पे मैं लेजर लेवल पे जाके चेक करूंगी। यहाँ पे मेरा है मेरा सेल्स GST का ये लेजर था IGST का, यहाँ पे मैंने रॉन्ग सिलेक्ट किया है। यहाँ पे IGST इंटीग्रेटेड सेल्स टैक्सेबल, यहाँ पे मैं लूंगी IGST सेल्स, ये मेरा हो गया। देन इसको मैं आगे सेव कर दूंगी तो मेरा ये ई इनवॉइसिंग के लिए आगे मुझे पूछेगा। अगर हमारा टैक्सेशन लेवल पे कुछ मिसमैच आता है तो हमें वो अनसर्टन ट्रांजेक्शन में पूछता है। तो यहाँ पे जाके आप वो जो टैक्सेशन लेवल का GST का कुछ मिसमैच है या अपना इनवॉइसिंग का डिस्काउंट लेवल का या इनवॉइस राउंडिंग का कुछ एरर आता है तो आप लेजर में जाके वो सॉल्यूशन वहाँ पे दे सकते हैं, मतलब वहां से निकाल सकते हैं। अभी सेकंड हम देखेंगे हमारा लेंथ ऑफ एड्रेस लाइन 1 to 100 कैरेक्टर्स। अगर कोई भी पार्टी का एड्रेस जो है, अगर एड्रेस वहां पे प्रॉपर नहीं है तो हमें वहां पे एरर शो करेगा इनवॉइसिंग रिपोर्ट्स में, बायर बिल टू एड्रेस इज नॉट स्पेसिफाई। अगर यहाँ पे एड्रेस नहीं है या एड्रेस आप 1 to 100 कैरेक्टर्स लेवल पे अगर डालते हैं तो यहाँ पे आपको यह एड्रेस शो करेगा। ये हम एरर्स निकालेंगे अभी। यहाँ पे जाके पार्टी को मैं एंटर ओपन कर देती हूँ कंट्रोल एंटर से, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कंपनी का एड्रेस। कंपनी का एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं यस कर दूंगी। यहाँ पे मेरा बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस आ गया। अगर अब बिल टू सप्लाई का अगर कुछ एरर आता है, अगर वो पार्टी लेवल पे आता है तो पार्टी में जाके हम चेंज कर सकते हैं। अगर कंपनी लेवल पे आता है तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है 12 कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स हमें प्रोवाइड किया है। इसको यस करने के बाद अगर यहाँ पे हमारा स्टेट कोड या प्लेस
यहाँ से मिसिंग है तो हमें ये एरर में शो करता है। तो आपको यहाँ पे जाके वो प्लेस या स्टेट कोड, स्टेट जो भी है यहाँ पे सेट करना है, या एंड अगेन इसके अगेंस्ट हमें ई इनवॉइसिंग जनरेट करना है। जैसे ही हमारा एरर निकल जाता है हमें ई इनवॉइसिंग के लिए यहाँ पे ये शो करता है। तो इस तरीके से हमारा अगर एड्रेस लेवल पे कुछ एरर आता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं और उसको सॉल्यूशंस टैली में से मतलब प्रॉपर अपने को भी समझ में आ जाता है कि एरर कहाँ पे, एरर लेवल पे हमें शो करता है किस तरीके का एरर आया है और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हमें यहाँ पे देना है। सेकंड, अगर कोई भी पार्टी का पिन कोड अगर आप रॉन्ग डालते हो तो आपको ये एरर शो करेगा, बायर बिल टू पिन कोड नीड्स टू बी 6 डिजिट। 6 डिजिट का हमें यहाँ पे पिन कोड बताना जरूरी है। अगर यहाँ पे 5 डिजिट अगर डालते हो तो यहाँ पे आपको ये इनवैलिड इंफॉर्मेशन में बताएगा, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। तो हम यहाँ पे जाएंगे पार्टी लेवल पे, पार्टी लेवल पे जाने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे ये मेरा पिन कोड है, यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ, आगे एंटर 40401208। यहाँ पे मैं सेट करी हूँ। अगर पार्टी लेवल पे है तो हम यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। अगर अपने कंपनी लेवल पे पिन कोड का अगर एरर आता है तो वो आप यहाँ पे जाके पिन कोड यहाँ पे सेट करके हमारा ये एरर, सॉरी ई इनवॉइसिंग का ये एरर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये अगर एरर है तो ये हम यहाँ से निकालेंगे एंड इसको करेंगे एक्सेप्ट। तो हमें ये ई इनवॉइसिंग के लिए पूछेगा। एक सेकेंड, बिल टू शिप कंसाइनिंग 6 डिजिट, एक मिनट यहाँ पे देखिए 401208 6 डिजिट 401208 एक्सेप्ट। तो मेरा यहाँ से एरर वो हट गया और इनवॉइसिंग के लिए मुझे यहाँ पे पेंडिंग में वो बताएगा कि मुझे ये इनवॉइस जनरेट करना है। सेकंड हम देखेंगे, अगर पार्टी नेम हमारा 1 या 100 कैरेक्टर्स के 1 कैरेक्टर है या 100 कैरेक्टर से अबव है तो पार्टी लेवल पे भी हमें ये एरर आ सकता है। तो वो एरर हमें यहाँ पे मिसिंग एंड इनवैलिड इंफॉर्मेशन में बताएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए आपको क्या शो हो रहा है, बायर बिल टू मेलिंग नेम इज नॉट स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे जो है मेरा मेलिंग नेम है अल्फाबेट ओनली 1 है, मतलब 1 है, इस वजह से मेरा वो वहां पे मिसमैच में बता रहे। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे देंगे, एंट्री लेवल पे यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे पार्टी को ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं डाल दे रही ये मेरे पार्टी का नाम हो गया। देन इसको मैं करूँगी सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे मुझे ई इनवॉइसिंग को यस करूंगी तो यहाँ पे मेरा ई इनवॉइसिंग जनरेट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप ई इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर कुछ एरर्स आते हैं आपको ई इनवॉइसिंग जनरेट करते वक्त तो आप इस तरीके से सॉल्यूशंस उसमें देके अपना ई इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन शो हो रहा है पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विथ ई इनवॉइसिंग सिस्टम। अगर यहाँ पे ई इनवॉइसिंग जनरेट करने में आपको कुछ दिक्कत है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से इनवॉइसिंग जनरेट करना है, तो ये पूरी इनवॉइसिंग अगर बल्क में जनरेट करने हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक्सचेंज में। एक सेकेंड, यहाँ पे एक्सचेंज में आप जाएंगे तो एक्सचेंज में यहाँ पे ऑप्शन है सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग। सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग करेंगे तो आपकी जो भी इनवॉइसिंग यहाँ पे रहेंगी जिसका आईआरएन बनाना बाकी है तो यहाँ पे आप बल्क में ई इनवॉइसिंग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ई इनवॉइसिंग में अगर कुछ एरर आते हैं तो आप उसको रिसॉल्व करके ई इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू, एंड ऑफ माय साइड।
Hello. Yeah, thank you, Yes, Sonali. ma'am. End of my side. Thank you. Yeah. So it's a time for overview of the today's session. So it's over to you, Bhagwati sir. Hello. Yeah, sir. Yeah, sorry. Actually, I'm another call. Thank you very much. So, myself is Bhagwati Dhandaria from Raj Lakshmi Solutions Private Limited, and as per the regular demanded topics, like many of the customers, they are using e-invoicing in the last few months, and they are facing some issues. So now, in terms of all the issues, we just listing out all these issues, and we are arranging these sessions for the rectification of all the rejection and resolution, how we can resolve the issues in the e-invoicing purpose. So that's why we arrange these sessions by today, and I think you all will get the solutions throughout these videos, throughout these live sessions. You will get the advantage of these sessions. So this is the overall idea of the today's sessions, and every of the week we are doing the multiple sessions according to your demanded topics. So we are every time if you have need any of the new topics, if you want to any sessions on that particular topics, definitely we will arrange a next topic in the next seminars. So you can suggest with us, and as per the scenarios, we are every time we are offering the every month new features, new things, and new softwares, and new updates, and new offers. So now this is a year-end months, and definitely we are working on it, and we are giving the up to 50% discount of the many of the products and many of the services. So I request you to coordinate with your account manager. Also communicate with me directly. My number is in the chat board. And if you need any type of the suggestion, advice, help, any of the software, any of the requirements, you can coordinate with us directly, and you will get the benefits. That's it from my side, Anka madam. It's over to you. Thank you. Thank you so much, sir. So if you have any questions, you can just mention in the chat box, or you can raise your hands. Sir, please check whether there are any questions. Yeah, I have not any questions over here. Okay. I think we shall wind up the session now. Yeah, of course. I think we can wind up the session. This is the right time to wind up the session. Thank you. Okay. So soon this session will be uploaded in our YouTube channel. So be connected to our social media and get the latest updates. So thank you so much for joining us for today's session. So now we'll wind up the session. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you. See you soon next.